and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss fifth part CCA rules 1965, classification control and appeal rules 1965. Already four parts already I have uploaded. So in this part, I will discuss suspension, a digest these things, guiding principles related to the suspension, deemed suspension, continued suspension, orders of suspension, date of effect of suspension. In this part, I will discuss 15 MCQs, latest pattern MCQs, and pattern of descriptive questions also. Now, you know, different principal exam, EMRS, KVS, NVS, prelim and main, and then Viva. So main part actually descriptive question is coming. Word limit is there. And this part, it is useful for all central government exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Definitely this video would be interesting one and you can get some good informations. So join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with my WhatsApp number. My Telegram channel link t.me /BAPI2034. Also, you can join it and you can get notification for my upcoming videos. So join my WhatsApp number and join my Telegram channel. If you join my Telegram channel, then you can up to date yourself about my videos. So now I am going to discuss fifth part of CCA rules 1965. Already first I told कि I will discuss the guiding principles for suspension of a government servant. Some guiding principles are there related to the suspension. So first you see, it is related to the public interest as the key factor. Public interest as the key factor, because you know we are always rendering service for the public, providing quality service to the public, basically government employees. So if any serious negligence is there, or any suppose moral turpitude, or in any manipulation in official duties, or any fraud is there in official duties, then definitely public raise the question if any type of action would not be taken. Now, so public interest are the key factor. Suspension should always be in the public interest, not as a routine or punitive measure. तो सस्पेंशन एक रूटीन बेस नहीं है, एक ऑटोमेटिकली बेस नहीं है. सपोज कोई सीरियस नेग्लिजेंस होता है, कोई मोरल टर्पिट्यूड होता है, कोई ऑफिशियल ड्यूटीज में सीरियस नेग्लिजेंस होता है, कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, इस केस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है. ठीक है, एक पनिशमेंट नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए उसको बेसिकली एनी ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन नहीं किया जाएगा सस्पेंशन पीरियड में. तो वो बेसिकली जो गवर्नमेंट कंसर्न एम्प्लॉय है जिसके ऊपर चार्ज लगा है और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो उसको कुछ सस्पेंड कर दिया जाएगा और कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा. तो क्यों ये किया जाता है? क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी करेगा तो इस इंक्वायरी मैटर में इंटरप्ट करेगा, इंटरवेन करेगा कि कोई एविडेंस को टैंपरिंग कर सकता है, ठीक है, कोई विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट एक्सरसाइज जजमेंट केयरफुली, स्पेशली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस व्हेन चार्जेस आर पेंडिंग. जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्चुअली प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है तो इमीडिएटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय जिसके ऊपर चार्ज लगा है उसको सस्पेंड कर देता है. मगर वो केयरफुली एग्जामाइन किया जाता है, केयरफुली ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और यदि कुछ एविडेंस मिलता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तब उसको कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है. तो सस्पेंशन एक पनिशमेंट मेजर नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी होगा तो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा, इंक्वायरी रिपोर्ट से वो जो भी चार्ज लगा है वो एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, वो चार्ज फॉल्स भी हो सकता है, और
यदि पूरा इंक्वायरी में रिपोर्ट में चार्ज मिलता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो हियरिंग के बाद नेचुरल जस्टिस आता है, मगर यहां पर रिलेटेड टू द सस्पेंशन नेचुरल जस्टिस का बात नहीं आएगा, क्योंकि यदि कुछ एविडेंस मिलता है तो इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कंसर्न एम्प्लॉय को। द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट टू पनिश द ऑफिसर बिफोर गिल्ट इज प्रूव्ड। पनिशमेंट में बार बार होता है कि सस्पेंशन एक पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो जो गिल्ट है वो तो प्रूव नहीं हुआ है ना, जो चार्ज लगा है वो प्रूव नहीं हुआ है, कुछ एविडेंस मिला है। जब कुछ एविडेंस मिलेगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, तब कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि नहीं तो हमको बेसिकली पब्लिक आउटरेजियस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रिटी होता है, ठीक है। यदि कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज में सीरियस नेग्लिजेंस होता है कि फ्रॉड होता है, ठीक है, तो इस केस में यदि प्राइमा फासी एविडेंस है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस है, तब उस केस में एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रिटी को इंटैक्ट करने के लिए कंसर्न ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है, तब फिर इंक्वायरी होगा। तो ये नहीं है कि अभी सस्पेंड कर दिया गया तो वो एक्चुअली गिल्ट प्रूव हो गया, कि जो उसके ऊपर चार्ज है प्रूव हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद इंक्वायरी होगा, कंप्लीट इंक्वायरी होगा, और इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट आएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट का फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट उसमें देखेंगे, अनदर गाइडिंग प्रिंसिपल है सर्कमस्टांसेस वारंटिंग सस्पेंशन। ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट में बी सस्पेंडेड। अच्छा, क्यों एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है? रीजन है कि मैं बार बार बताया, यदि कुछ प्राइमा फासी एविडेंस मिलता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन नहीं किया जाएगा। क्योंकि फर्स्ट है, यदि कुछ ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन किया जाएगा तो वो इंटरफियरेंस करेगा बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में। तो टू प्रिवेंट इंटरफियरेंस इन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, जो इंक्वायरी होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका कोई वो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, इसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन नहीं किया जाता है। क्लियर? क्योंकि वो विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो एविडेंस है उसको टैंपर कर सकता है, जो इंक्वायरी चलेगा वो उसको उसमें इंटरप्शन कर सकता है, उसके इंटरवेन कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तो यदि कुछ प्रूफ मिलता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और कुछ ऑफिशियल ड्यूटी उसको असाइन नहीं किया जाएगा। सेकेंड है टू मेंटेन डिसिप्लिन व्हेन अलाउइंग हिम टू कंटिन्यू मे सीरियसली अफेक्ट डिसिप्लिन और मोरल इन द ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन। यदि उसको कंटिन्यू किया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको ऑफिस में कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सीरियस नेग्लिजेंस का चार्ज लगा है, मोरल टर्पिट्यूड का चार्ज लगा है, फ्रॉड का चार्ज लगा है, और कुछ एविडेंस भी मिला है, तो उसके इसमें हम कंटिन्यू करने देंगे, तो वहां पर क्या होगा, जो डिसिप्लिन है वो ब्रीच होगा। इसमें एक जो ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में जो मोरल है वो डाउन होगा, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इमीडिएटली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय जिसके ऊपर चार्ज लगा है और कुछ एविडेंस मिला है रिलेटेड टू द चार्ज, तो उस केस में उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसको कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है, टू मेंटेन द डिसिप्लिन और मोरल इन द ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, third point, very common point, when public interest is involved, especially in public scandals like corruption, misuse of position to uphold the image and integrity of the government. Obviously, यदि कुछ करप्शन चार्ज लगा है कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर कि वो उसका पोजीशन को मिसयूज किया है और उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो पब्लिक तो क्वेश्चन रेज करेंगे, डेफिनेटली पब्लिक रेज द क्वेश्चन। ओके, सो इसमें क्या होगा ना, definitely the concern department lose its integrity, the concern office also lose its integrity, ठीक है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, प्राइमा फासी केस, यदि मैं बार बार बताया कि सस्पेंशन के पहले एक प्राइमा फासी एविडेंस, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिलता है, तब उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्जामाइन करेगा, जो भी सीरियस नेग्लिजेंस का चार्ज लगा है, कि जो मोरल टर्पिट्यूड का चार्ज लगा है, कि जो फ्रॉड का चार्ज लगा है, उसके ऊपर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ और कुछ एविडेंस मिला। ओके, तो उस केस में क्या होगा,
डेफिनेटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। When a strong case is established in preliminary inquiry likely to result in conviction, dismissal or compulsory retirement. So prima facie case, तो मेनली यदि कुछ एविडेंस रिलेटेड में यदि कुछ एविडेंस मिलता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इफ द एम्प्लॉय इज सस्पेक्टेड ऑफ एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू स्टेट सिक्योरिटी, यदि कुछ एम्प्लॉय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटेक्ट किया कि कॉन्सर्न एम्प्लॉय कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, तो उस केस में इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टिपिकल कुछ मिसकंडक्ट्स देखेंगे, टिपिकल मिसकंडक्ट्स जस्टिफाइंग सस्पेंशन, ऐसा कुछ मिसकंडक्ट है, टिपिकल मिसकंडक्ट है जो उसका रिजल्ट सस्पेंशन होगा, डेफिनेटली सस्पेंशन होगा। तो सस्पेंशन में भी जस्टिफाइड इन केसेस इन्वॉल्विंग, देखिए, मोरल टर्पिट्यूड और क्रिमिनल एक्ट्स लाइक थेफ्ट, फ्रॉड, इस केस में 100% सस्पेंशन होगा। करप्शन और एम्बेजलमेंट, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर्स फॉर पर्सनल गेन, तो ऑटोमेटिकली करप्शन एम्बेजलमेंट केस में क्या है, वो जो कंसर्न ऑफिसर है जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो उसका पोजीशन को मिसयूज किया पर्सनल गेन के लिए। नेक्स्ट वन, सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस टू गवर्नमेंट, वो सीरियस नेग्लिजेंस और वो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी उसको करना चाहिए बहुत केयरफुली, वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, उसके वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंस हुआ उसमें गवर्नमेंट का लॉस हुआ, गवर्नमेंट को मॉनेटरी लॉस हुआ, तो उस केस में डेफिनेटली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। डेजर्शन ऑफ ड्यूटी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, आप ड्यूटी को क्या है, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई परमिशन नहीं लिया, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, कि आपका जो नॉर्मल वर्क है वो नॉर्मल वर्क आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में तो सस्पेंशन होगा। नेक्स्ट वन, डिसोबीडियंस और विलफुल रिफ्यूजल टू कैरी आउट लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स, आपका जो हायर अथॉरिटी है जो वो तो ऑफिशियल मैटर में आपको डायरेक्शन देंगे सुपीरियर ऑफिसर्स, आप उसको डिसोबे कर रहे हो, जानबूझकर आप जो ऑर्डर्स है उसको रिफ्यूज कर रहे हो। सुपीरियर ऑफिसर्स आपको क्या वर्क देगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा वो तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस देगा ना, तो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को आप डिसोबे कर रहे हो और उसको आपको रिफ्यूज कर रहे हो कि मैं उसको कैरी आउट नहीं कर सकता, तो उस केस में तो सस्पेंशन होगा। तो इस तरीके का मिसकंडक्ट में डेफिनेटली कंसर्न एम्प्लॉय का सस्पेंशन होगा। ठीक है, कुछ केसेस है, ये सब गाइडलाइंस में आता है रिलेटेड टू सस्पेंशन। चलो, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन विथ केयर, ये क्या है, सस्पेंशन के पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा तो वो प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा, क्योंकि एक रूटीन नेचर नहीं है सस्पेंशन, नॉट इन, इट इज नॉट मैकेनिकल इन नेचर, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसका प्राइमा फासी एविडेंस मिलेगा, उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ एविडेंस मिलेगा, उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा। ओके, तो इसमें यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉन्फिडेंट हुआ कि हाँ जो सीरियस नेग्लिजेंस हुआ था और उसी रिलेटेड में एविडेंस मिला है, तब वो कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा। ठीक है, क्लियर, तो उस केस में इन केसेस इन्वॉल्विंग डिसिप्लिन, नेग्लिजेंस, डिसोबीडियंस, सस्पेंशन शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली, वेरी एब्सोल्यूट नेसेसरी। सपोज आपका ऑफिशियल वर्क में डिसिप्लिन नहीं है, आप सीरियस नेग्लिजेंस, आपका जो वर्क है, जो नॉर्मल वर्क है, आप उसमें वेरी केयरलेसली यू आर डूइंग वर्क, डिसोबीडियंस टू सुपीरियर्स, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर सुपीरियर्स एक्चुअली यू डू नॉट फॉलो इट, तो इस केस में तो एब्सोल्यूट नेसेसरी है, तो उसको केयरफुली एग्जामाइन करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करेगा। सस्पेंशन कैन टार्निश एन ऑफिसर्स रेपुटेशन इवन इफ ही इज लेटर क्लियर्ड ऑफ चार्जेस, ये तो बहुत, वंस कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड हुआ मींस उसका रेपुटेशन डाउन होता है, उसका रेपुटेशन टार्निश होता है, उसका इमेज खराब हो जाता है, नॉट ओनली इन ऑफिस ऑल्सो इन द कम्युनिटी एंड सोसाइटी, ओके, और इन द पब्लिक प्लेसेस। तो बाद में सपोज इंक्वायरी होगा और इंक्वायरी में कुछ एविडेंस नहीं मिला, तो आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फॉल्स हो गया, तो वो अलग बात है, मगर वन सस्पेंडेड हो गए मींस एक्चुअली जो कंसर्न ऑफिसर का जो रेपुटेशन है, उसका जो इमेज है वो खराब हो जाता है। तो देयरफॉर द अथॉरिटी मस्ट वे ऑल फैक्टर्स केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, तो सस्पेंशन के पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एवरी फैक्टर को
वो वेटेज देकर एवरी फैक्टर को प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा, ठीक है, कि एक्चुअली जो सीरियस नेग्लिजेंस है, कि जो भी चार्जेस सीरियस चार्जेस लगा है, क्या उसमें कुछ एविडेंस है, क्या उसमें कुछ ट्रूथफुलनेस है, ठीक है। So the action should be reasonable, fair and proportionate to the circumstances. So circumstances को देखकर तो basically the action should be reasonable, fair and proportionate. तो ये है, माने बेसिकली ओवरऑल हम इसमें क्या देखा, ओवरऑल यही देखा कि सस्पेंशन के पहले, जस्ट बिफोर सस्पेंशन, एक्चुअली इट इज द ड्यूटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू एग्जामाइन प्रॉपरली, okay, to very mane thoroughly examine it, and if actually the competent authority get some evidence, strong evidence, then वो उसको सस्पेंड करता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टू सस्पेंशन, कुछ ऑल्टरनेटिव है। बिफोर ऑर्डरिंग सस्पेंशन द अथॉरिटी शुड कंसिडर लेस ड्रास्टिक ऑप्शंस। सस्पेंशन, सपोज सस्पेंशन ऑर्डर से पहले अथॉरिटी ये भी कुछ लेस ड्रास्टिक ऑप्शंस को देखता है। क्या है, ट्रांसफर द एम्प्लॉय टू अनदर पोस्ट टू प्रिवेंट इंटरफियरेंस विथ इंक्वायरी, तो उसको अनदर पोस्ट को वो ट्रांसफर कर सकता है, ओके। तो क्योंकि जो प्रेजेंट जो सपोज अदर प्लेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसका जो करेंट प्लेस है उसमें तो इंक्वायरी चलेगा, जो इंक्वायरी में वो इंटरफियरेंस नहीं करेगा, तो उस केस में सस्पेंशन ऑर्डर इशू नहीं होगा। ये एक लेस ड्रास्टिक ऑप्शन है, ओके। सपोज नेग्लिजेंस, एक्चुअली जो नेग्लिजेंस है उसमें इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो कंसर्न अथॉरिटी उसको ट्रांसफर कर देगा अदर प्लेस को, क्योंकि करंट प्लेस में जब इंक्वायरी चलेगा वो इंटरफियरेंस नहीं कर पाएगा, कि उसको लीव दे सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि आप लीव में चले जाओ, ओके। इफ द ऑफिसर रिक्वेस्ट इट, द ऑफिसर रिक्वेस्ट करते हैं उसको लीव दे में अलाउ कर देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये सब क्या है, ऑल्टरनेटिव टू सस्पेंशन। यदि क्वेश्चन आता है, यदि कुछ सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस को ढूंढता है, ओके, इंस्टेड ऑफ इशू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, थोड़ा डीम्ड सस्पेंशन देखेंगे। डीम्ड का मतलब है डीम्ड ऑटोमेटिक सस्पेंशन, ठीक है, उसके ऊपर भी मेरा प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल इन सर्विस ऑटोमेटिकली सस्पेंशन इन 2 केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर मोर देन 48 आवर्स, ही इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्ट क्लियर। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई क्रिमिनल चार्ज लगता है और कोई ऐसा केस है जिसमें वो कस्टडी में डिटेन होता है, ओके, ही इज डिटेन इन द कस्टडी, और जो कस्टडी में डिटेन होगा उसका जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, जो कस्टडी में उसका डिटेंशन होगा मोर देन 48 आवर्स, तब ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम द, तो सस्पेंशन कब से इफेक्टिव होगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, याद रखिए। और यहां पर जो टाइमिंग है 48 आवर्स जो हम काउंट करेंगे, कि जैसे यहां पर मैं बताया कि वो सपोज क्रिमिनल चार्जेस में उसको डिटेन कर दिया गया कस्टडी में, ठीक है, और डिटेन कर दिया गया, मगर टाइमिंग मोर देन 48 आवर्स होना चाहिए। तो जब मोर देन 48 आवर्स वो डिटेन होकर रहेगा कस्टडी में, तब ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। और यहां पर 2 चीज आपको याद रखना है, जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा वो इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, मगर जो 48 आवर्स काउंट होगा, ये बहुत 48 आवर्स जो काउंट होता है, ऑब्वियसली वो डिटेंशन है, तो यहां पर याद रखना है खाली डिटेंशन होने से नहीं होगा। क्रिमिनल चार्जेस एक्चुअली इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ही इज डिटेन्ड इन द कस्टडी, खाली डिटेन होने से नहीं होगा, टाइमिंग मोर देन 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी सस्पेंडेड, और जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है, और एक डीम्ड सस्पेंशन है, इफ कॉन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, ही इज ऑल्सो डीम्ड सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कन्विक्टेड हुआ, कोई भी केस में कन्विक्टेड हुआ बाय द कोर्ट, कन्विक्टेड के बाद इम्प्रिजनमेंट हुआ एक्सीडिंग 48 आवर्स, तो यहां पर जो डीम्ड ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होगा
कब से ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, तो यहां पर और एक चीज याद रखना है, मगर जो 48 आवर्स काउंट तो कैसे होगा, एक्सीडिंग 48 आवर्स जो काउंट कैसे होगा ना, फ्रॉम द, सपोज कन्विक्टेड हुआ, कन्विक्शन कन्विक्टेड हुआ मींस इमीडिएटली इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ, कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट होगा। ठीक है, तो कन्विक्शन हुआ मींस डीम्ड सस्पेंशन हम मानेंगे, मगर कन्विक्टेड हुआ फिर इंप्रिजनमेंट हुआ, ये याद रखना है, कन्विक्टेड एंड इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर केस में कन्विक्टेड हुआ और इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, तब यहां पर ऑटोमेटिक सस्पेंशन हम मानेंगे, कब से ना, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, मगर ये जो 48 आवर्स यहां पर काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट। ओके, जब जो 48 आवर्स काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कौन होगा, इंप्रिजनमेंट, उसको आप देखना है। ठीक है, मगर जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो यहां पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्विक्टेड एंड इंप्रिजनमेंट, मगर वहां पर भी एक्सीड्स 48 आवर्स, और यदि इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स होता है तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंडेड होगा, और वो सस्पेंशन जो इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, और जो इंप्रिजनमेंट जो 48 आवर्स हम काउंट करेंगे वो 48 आवर्स कैसे इफेक्ट होगा ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, 48 आवर्स को हम काउंट करेंगे। ठीक है, मगर सस्पेंशन जो इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, ये बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन में आता है, इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। इफ रिलीज्ड ऑन बेल, सपोज आप मानते हो कि कस्टडी में डिटेन था और डिटेंशन इन कस्टडी एक्सीड्स 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो गया। उसके बाद वो सपोज रिलीज होता है बेल में, क्या डीम्ड सस्पेंशन खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक चीज आपको याद रखना है, रिलीज्ड ऑन बेल आफ्टर डिटेंशन बियॉन्ड 48 आवर्स, कस्टडी में डिटेन हुआ, ओनली कस्टडी में डिटेन होने से नहीं, कस्टडी में डिटेन हुआ एक्सीड्स 48 आवर्स तो ऑटोमेटिकली डीम्ड सस्पेंशन हो गया। उसके बाद वो रिलीज ऑन बेल, तभी भी वो जो डीम्ड सस्पेंशन वो कंटिन्यू रहेगा जब तक उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिवोक ना करे। ओके, सो डज नॉट एंड द डीम्ड सस्पेंशन, इट कंटिन्यूज अंटिल रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि डिटेन्ड इन कस्टडी एक्सीड्स 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली द कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड, देन आफ्टर रिलीज ऑन बेल देन डीम्ड सस्पेंशन वुड बी सीज्ड। ऐसा नहीं है, तो 100% वो कस्टडी में जब डिटेन हुआ एक्सीड्स 48 आवर्स ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो गया, और उसके बाद उसको बेल मिल जाता है, वो बाहर आ जाता है, क्या उसका डीम्ड जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन खत्म हो जाएगा? ऑटोमेटिक सस्पेंशन खत्म नहीं होगा अंटिल रिवोक्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, और यहां पर दिया है देखो, काउंटिंग 48 आवर्स, जैसे कन्विक्शन एंड इंप्रिजनमेंट। ठीक है, इस केस में जैसे मैं बताया था, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कन्विक्शन एंड इंप्रिजनमेंट। तो इसमें क्या है, कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट हुआ, मगर इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, तो उसको हम ऑटोमेटिक सस्पेंशन मानेंगे, मगर जो 48 आवर्स काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट 48 आवर्स काउंट होगा। मगर सस्पेंशन को कैसे हम इफेक्ट मानेंगे? समवन इज आस्किंग क्वेश्चन, हाउ कैन यू काउंट, इस केस में कन्विक्शन एंड इंप्रिजनमेंट, हाउ कैन यू काउंट 48 आवर्स? क्या हम कन्विक्शन से 48 आवर्स को काउंट करेंगे? ना, हम इंप्रिजनमेंट से 48 आवर्स काउंट करेंगे, इंप्रिजनमेंट से 48 आवर्स काउंट करेंगे, मगर जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा वो कन्विक्शन डेट से होगा। ठीक है, by same thing it is clearly mentioned, the period of 48 hours is counted from the commencement of imprisonment after conviction, including continuous and intermittent। ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, इंक्लूडिंग जो 48 आवर्स, इंक्लूडिंग कंटिन्यू नहीं तो इंटरमीडिएट। कभी कभी क्या है ना, कुछ टाइम वो कस्टडी में रहा, फिर बाहर आ गया, फिर कस्टडी में रहा, बाहर आ गया, इसे टोटल जो इंटरमिटेंट इंप्रिजनमेंट है, यदि पूरा मिलाकर ओके क्रॉस 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली वो
सस्पेंडेड होगा, डीम्ड सस्पेंशन होगा। मगर 48 आवर्स जो हम काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे बेसिकली फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट। जब से इंप्रिजनमेंट उसको हुआ वहां से 48 आवर्स काउंट करेंगे। मगर जो सस्पेंशन का इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज अरेस्टेड they have a duty to immediately inform their superior officer about the arrest and the related circumstances even if they are later released on bail। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट अरेस्ट होता है, ठीक है, तो उसका ड्यूटी है वो इमीडिएटली उसका सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द अरेस्ट। ओके, एंड सर्कमस्टांस को भी बोलेगा कि एट व्हाट सर्कमस्टांसेस एक्चुअली ही इज अरेस्टेड। ओके, अब उसके बाद वो एक्चुअली बेल में आ जाए, मगर जब उसका अरेस्ट होता है तो इमीडिएटली सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और सर्कमस्टांस को भी एक्सप्लेन करेगा। ये बाद में वो बेल में आ जाए, ठीक है, ये नहीं है, मगर इमीडिएटली जब अरेस्ट होगा इमीडिएटली सुपीरियर ऑफिसर को वो इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि वो रिपोर्ट नहीं किया, अरेस्ट हो गया मगर सुपीरियर ऑफिसर को वो इन्फॉर्म नहीं किया, उसके बाद वो बेल में आ गया और बाद में ये पता चला कि वो इसको छुपाया है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो उस केस में भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ये डिसिप्लिनरी एक्शन होगा डिपार्टमेंटल लेवल में, और वहां तो पुलिस केस चल रहा है, पुलिस केस में जो एक्शन होगा होगा, क्योंकि पुलिस आपको अरेस्ट किया ना, पुलिस अरेस्ट किया मगर आपका सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया, बाद में बेल में आ गए, मगर उसमें बाद में पता चला, डिपार्टमेंट ने पता किया कि आप अरेस्ट हुए थे और सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया था, तो इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन, सेपरेट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। यहां पर तो पुलिस एक्शन तो चलेगा, क्योंकि जब अंडर ट्रायल चलता है पुलिस केस में, जो अंडर ट्रायल चलता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो तो केस चलता रहेगा, वो तो कोर्ट को जाएगा मामला, क्योंकि पुलिस क्या करेगा, चार्जशीट कहां पर दाखिल करेगा, कोर्ट में, तो वो तो चलेगा। मगर उसके साथ आप जो आपका अरेस्ट को जो छुपाया, सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अलग चलेगा। तो यहां पर दो प्रकार का केस चलेगा, एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा और वहां पर पुलिस केस भी चलेगा, दोनों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का अरेस्ट होता है तो इमीडिएटली ही मस्ट इन्फॉर्म टू हिज सुपीरियर ऑफिसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस। इफ एक्चुअली इवन इफ उसके बाद सपोज ही देन आफ्टर दैट ही रिलीज ऑन बेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इफ यू हाइड इट, then after that suppose competent authority collect information about your arrest and got information that you have been not informed to the superior officer, तो उस केस में separately disciplinary proceeding will be initiated in departmental level, और यहां पर तो पुलिस केस है। ठीक है, तो दोनों चलेगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा और वहां पर पुलिस जब चार्जशीट दाखिल कर देगा कोर्ट में, कोर्ट केस भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये रूल 10(3) देखिए, इफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट इज सेट असाइड। कभी कभी क्या है, ऑलरेडी मेजर पेनल्टी ऑर्डर दे दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, कि जॉब से रिमूव कर दिया गया है, कि जॉब से कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया है। ओके, मगर उसके बाद क्या हुआ, कौन एम्प्लॉय अपील किया कि वो रिव्यू हुआ और रिव्यू में उसको हटा दिया गया, ये जो पेनल्टी था उसको हटा दिया गया, तो उस केस में एक चीज होगा कि फ्रेश इंक्वायरी होगा, क्योंकि ये जब ऑर्डर मिला, ओके, कंसर्न एम्प्लॉय को, वो अपील किया कि उसका केस रिव्यू में चला गया और अपील रिव्यू में ये जो पेनल्टी लगा था उसको हटा दिया गया। ये रूल 10(3), क्योंकि रूल 10 जो है, आप सीसीए रूल्स 1965 का रूल 10 जो है वो सस्पेंशन रिलेटेड है। रूल 10 सबसेक्शन 3 यही बोल रहा है, यदि उसको अपील में कि रिव्यू में, उसको अपीलेट अथॉरिटी और रिव्यू अथॉरिटी उसको ये जो पेनल्टी लगा था उसको सेट असाइड कर देता है, हटा देता है, तो उस केस में क्या होता है ना, एक डीम्ड सस्पेंशन होगा। जिस डेट में आपको ओरिजिनल ऑर्डर मिला था, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो ओरिजिनल ऑर्डर मिला था, वहां से उसी डेट से डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, ऑटोमेटिकली कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड रहेगा और ऑटोमेटिकली फ्रेश इंक्वायरी होगा। वही दिया है, व्हेन सच ए पेनल्टी इज सेट असाइड ऑन अपील और रिवीजन and the case is remitted further inquiry or decision, the order of suspension is deemed to continue from the original date of penalty until further orders। तो उसमें यदि उसको हटा दिया जाता है, ये जो पेनल्टीज को, इट मीन्स थ्रू अपील और रिवीजन, इस केस में क्या होगा, फिर इंक्वायरी होगा, फर्दर इंक्वायरी,
के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो उस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में आपको डिसमिसल रिमूवल की कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, वहां से आपका फिर सस्पेंशन इफेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन इफेक्ट होगा उसी डेट से। ओके, टिल अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर। तो और एक है कोर्ट, सपोज रूल 10(4), यदि कुछ ऐसा पेनल्टी लगा है और कोर्ट उसको सेट असाइड कर देता है, कोर्ट हटा देता है। ठीक है, जब आपको ऑलरेडी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है, कि रिमूव कर दिया गया है, कि कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया है, आप कोर्ट चला गया और कोर्ट उसको सेट असाइड कर दिया, फिर अगेन इंक्वायरी के लिए डिसीजन दे दिया। तो उस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में आपको ऑर्डर मिला था, बेसिकली डिसमिसल की, रिमूवल की, कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से मान लिया जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके, इफ द पेनल्टी इज डिक्लेयर्ड void by court and a further inquiry is ordered, the suspension continues from the original date until further orders. तो ये सब ऑटोमेटिकली डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। जिस डेट में आपको डिसमिस किया गया था जॉब से, कि रिमूव किया गया था, कि कंपल्सरी रिटायर किया गया था, उसी डेट से फिर आपको आपका सस्पेंशन इफेक्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, ये दो केस है, रूल 10 सबसेक्शन 3, रूल 10 सबसेक्शन 4। इसको भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सस्पेंशन जब मैं डिस्कस किया था मेरा प्रीवियस पार्ट में, देखिए वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वन, even if the employee was not actually under suspension at the time of his dismissal removal, okay, the rule, suppose आप जब आपको जॉब से रिमूव कर दिया गया, कि डिसमिस कर दिया गया, तो उस केस में सपोज आप सस्पेंडेड नहीं थे, ओके, सस्पेंडेड नहीं थे, मगर ये जजमेंट मिला, सपोज पेनल्टी ऑर्डर मिला, डिसमिसल रिमूवल टाइप पेनल्टी ऑर्डर मिला, और अपील और रिव्यू में इस तरीके का पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया, हटा दिया गया। मगर जब हटा दिया जाएगा तो इस केस में ऑटोमेटिकली जिस डेट से आपको डिसमिसल की रिमूवल का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से सस्पेंशन ऑटोमेटिकली माना जाएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। द रूल ऑटोमेटिकली ट्रीट्स हिम एज इफ ही कंटिन्यूड अंडर सस्पेंशन व्हेन द डिसमिसल इज लेटर सेट असाइड। आप याद रखिए, यदि आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो जॉब से रिमूव किया गया, कि डिसमिस किया गया, उसके पहले एक्चुअली मैं सस्पेंड नहीं था, अभी तो जॉब से डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, मगर उसके पहले आपको सस्पेंड नहीं किया गया था। ठीक है, और जॉब से आपको डिसमिस रिमूव कर दिया गया, और आप अपील किया कि आपका केस रिव्यू हुआ, और ये इस तरीके का पेनल्टी से साइड हो गया, फिर इंक्वायरी होगा, अगेन फर्दर इंक्वायरी होगा। तो उस केस में ऑटोमेटिकली मान लीजिए जिस डेट में आपको डिसमिसल ऑर्डर मिला था, कि रिमूवल ऑर्डर मिला था, उसी डेट से आपका सस्पेंशन ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, द सस्पेंशन इज डीम्ड टू कंटिन्यू ऑटोमेटिकली फ्रॉम द ओरिजिनल डेट ऑफ पेनल्टी, डिसमिसल, रिमूवल, रिटायरमेंट अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। Even the deemed suspension operates automatically, a formal order must still be issued mentioning the reason and relevant rule. तो इस केस में जो deemed suspension होता है, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होता है, इस केस में अल्टीमेटली एक फॉर्मल ऑर्डर भी इशू होता है। ए फॉर्मल ऑर्डर मस्ट स्टिल बी इशूड। तो उसका रीजन क्या है, रिलेवेंट रूल विथ रीजन भी एक फॉर्मल ऑर्डर इशू होता है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो, डीम्ड सस्पेंशन हो गया, उसमें कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं चाहिए। आप किस किस केस में, इन विच केसेस एक्चुअली द कंसर्न एम्प्लॉई इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, जो डीम्ड सस्पेंशन जिसको बोला जाता है, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल ऑर्डर इशू होगा कि नहीं। तो वहां पर भी फॉर्मल ऑर्डर इशू होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट को ऑर्डर रखना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और किस सपोज ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा, रिटन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि इसके वजह से सपोज अपीलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी ये जो पेनल्टी लगा था, डिसमिसल की रिमूवल का जो पेनल्टी लगा था, उसको सेट असाइड कर दिया, फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया, और इस रीजन से जिस डेट में उसको रिमूवल की डिसमिसल ऑर्डर मिला था, वहीं से फिर ऑटोमेटिक सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। इसे एक फॉर्मल ऑर्डर होना चाहिए। ये फॉर्मल ऑर्डर होने से क्या है, रिटन ऑर्डर, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, और एक रिकॉर्ड भी रहेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन रूल 10(2) जो डीम्ड सस्पेंशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है रूल 10(2). ये तो डीम्ड सस्पेंशन रिलेटेड है। प्रोवाइड्स दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension if he is retained in custody for more than 48 hours। सुप्रीम कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट किया है। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई कस्टडी में रहता है मोर देन 48 आवर्स तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन माना जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट वन, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट दिस डीम्ड सस्पेंशन डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड। तो सुप्रीम कोर्ट भी माना कि ये जो डीम्ड सस्पेंशन हुआ, कस्टडी में डिटेन हुआ मोर देन 48 आवर्स, डीम्ड सस्पेंशन हो गया, उसके बाद आप बेल में आइए, उसके बाद आप बेल में आ गए, आप ये सोचोगे जो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हुआ था वो हट जाएगा, वो नहीं हटेगा जब तक उसको रिव्यूइंग अथॉरिटी until reviewing authority it means revokes the suspension, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। द ऑटोमेटिक डीम्ड सस्पेंशन विल बी कंटिन्यूड, ओके, until the competent authority revoke the deemed suspension, ठीक है। तो वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया है। इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन फोर्स until the competent authority expressly modifies or revokes the suspension order। जब तक उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मॉडिफाई नहीं किया, कि उसको रिवोक नहीं किया, तब तक वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। चलो थोड़ा कंटिन्यूड सस्पेंशन ये देखेंगे, रूल 10 सबसेक्शन 5B, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑलरेडी सस्पेंडेड, क्योंकि एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो इसके वजह से कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया है, ओके, वेदर बिकॉज ऑफ एन अर्लियर डिसिप्लिनरी केस और एनी अदर रीजन। क्योंकि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सस्पेंडेड है। एक न्यू केस आ गया और एक न्यू केस आ गया, एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है और उसके वजह से कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड है, और एक न्यू केस स्टार्ट हुआ और एक न्यू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ, ओके, और एक न्यू केस स्टार्ट हुआ, ओके, अगेंस्ट द सेम पर्सन। तो उस केस में क्या होगा ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ये डिसीजन रहेगा कि सस्पेंशन पूरा कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि एक डिसिप्लिनरी मैटर में अभी कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड है, क्योंकि अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चल रहा है। वो फास्ट केस था, वो फास्ट केस अभी पेंडिंग है, ओके, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन। एक अनदर केस आ गया वही अगेंस्ट द सेम पर्सन, एक अनदर केस में फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो इस केस में क्या होगा, मोर देन वन केस हो गया, तो इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये डिसीजन लेता है कि वो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा जब तक सभी जो भी एक मोर देन वन जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है, कि मोर देन वन केस में जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक सभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट ना हो जाए तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। The competent authority can issue a written order saying that the employee will continue to remain under suspension। और कब तक वो रहेगा ना, this continued suspension will remain in force until all the disciplinary cases, one or more, against that employee are fully decided or closed। तो चाहे एक से ज्यादा केस हो, ठीक है, एक से ज्यादा, सपोज 2-3 केसेस में चल रहा है, साइमल्टेनियसली 2-3 केस चल रहा है सेम पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या डिसाइड किया ना, जब तक जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक सबका क्लोज ना हो जाए, सब टर्मिनेट ना हो जाए, तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये रूल पोजीशन को भी याद रखिए, रूल 10 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 5 का बिट, सेकेंड बिट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर्स ऑफ सस्पेंशन के ऊपर देखेंगे। ऑर्डर्स कैसे होता है, जो सस्पेंशन, सपोज एक कंसर्न एम्प्लॉय को ऑर्डर इशू होगा, वो कैसे होगा, रिटन ऑर्डर। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड ओनली थ्रू ए रिटन ऑर्डर। कोई ओरल इंस्ट्रक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है, ओरल इंस्ट्रक्शन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक रिटन ऑर्डर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें देख लीजिए,
a government servant can be suspended only through a written order, right? An oral instruction to suspend someone has no legal value. कोई oral instruction का कोई legal value नहीं होता है, इसलिए written order, ठीक है, दिया जाएगा. नेक्स्ट वन, ओनली ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन सस्पेंड. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अथॉरिटी सस्पेंड, अच्छा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कौन है मैं डिस्कस किया था. जैसे आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जैसे अथॉरिटी हुज रैंक इज मोर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और एक है ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर. ऑनरेबल प्रेसिडेंट इट मींस गिव पावर टू एनी अदर अथॉरिटी. तो ये सब है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकते हैं. ओके, उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पावर है. और द अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. नेक्स्ट है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इट मींस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट और कोई भी ऑफिसर को पावर दे सकते हैं सस्पेंड करने के लिए. तो ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंड करेगा. यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सस्पेंड नहीं करेगा तो उस केस में जो सस्पेंशन है वो इनवैलिड होगा. द ऑफिसर और अथॉरिटी इशूइंग द सस्पेंशन मस्ट बी लीगली एम्पावर्ड, competent to do so. If someone without proper authority issues the suspension, it becomes invalid or illegal. यदि जिस अथॉरिटी के पास पावर नहीं है वो सस्पेंड कर दिया तो वो सस्पेंशन तो इलीगल होगा. तो अभी मैं बताया कि हु आर द अथॉरिटीज एक्चुअली सस्पेंड द कॉन्सर्न एम्प्लॉय. तो कॉन्सर्न एम्प्लॉय का अपॉइंटिंग अथॉरिटी, और अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. थर्ड वन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. फोर्थ वन ऑनरेबल प्रेसिडेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर. It means choose one authority कि give power to one it means give power to authority who can suspend. ठीक है. थर्ड वन यहां पर देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी. बिफोर साइनिंग द ऑर्डर द अथॉरिटी मस्ट चेक इट्स कॉम्पिटेंस एंड एंश्योर प्रॉपर रीजंस फॉर सस्पेंशन एग्जिस्ट. ये तो कॉमन है. ऑर्डर के पहले जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो उसको चेक करना चाहिए कि मैं कॉम्पिटेंट हूं कि नहीं सस्पेंशन करने के लिए, और जिस रीजन के वजह से मैं सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर रहा हूं क्या वो जेन्युइन है, क्या कुछ एविडेंस मिला है. ठीक है, तो इसको चेक करना, एग्जामाइन करना चाहिए. अच्छा, यदि सस्पेंशन इलीगल होता है तो सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज वॉइड. यदि सस्पेंशन इलीगल कब होगा? जो सपोज एक अथॉरिटी के पास पावर नहीं है और वो अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर रहा है तो वो सस्पेंशन ऑर्डर वैलिड नहीं होगा. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं. द अथॉरिटी हुज रैंक इज बिलो अपॉइंटिंग अथॉरिटी. अथॉरिटी हुज रैंक इज बिलो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्या वो सस्पेंड कर सकता है? यदि वो सस्पेंड किया तो सस्पेंशन इनवैलिड होगा. तो उस केस में द गवर्नमेंट सर्वेंट को विल बी एंटाइटल्ड टू फुल सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर दैट एंटायर पीरियड आज इफ ही वाज नेवर सस्पेंडेड. तो ऑटोमेटिकली जो इनवैलिड पीरियड में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिला कंसर्न एम्प्लॉय को, तो बाद में पता चला कि जो सस्पेंशन है वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, तब जो जिस पीरियड एक्चुअली जो इनवैलिड सस्पेंशन पीरियड है वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट को फिर उसका फुल सैलरी एंड अलाउंसेस एंटायर पीरियड के लिए मिलेगा. ठीक है. फॉर्मल डिजर्बिलिटी ऑफ ए फॉर्मल सस्पेंशन ऑर्डर. यहां पर देख लीजिए, जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन केस में जैसे रूल 10(2) है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन है. डीम्ड सस्पेंशन 3 में क्या है? जब आपका अपेलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी जो मेजर पेनल्टी लगाता, रिमूवल, डिसमिसल टाइप ऑफ मेजर पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया और फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया, तो उस केस में रूल है कि जिस डेट में आपको डिसमिसल की रिमूवल का ऑर्डर मिला था वहां से फिर कंटिन्यू सस्पेंशन और डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. और यहाँ पर कोर्ट रिलेटेड है. यदि कोर्ट सेट असाइड कर दिया मेजर पेनल्टी लाइक डिसमिसल की रिमूवल और फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया, वहां पर भी जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिसल की रिमूवल का ऑर्डर मिला था वहां से ऑटोमेटिकली डीम्ड व कंटिन्यूड सस्पेंशन कंटिन्यू होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स. तो इस केस में क्या कोई फॉर्मल ऑर्डर चाहिए? वही, क्या इसमें एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर चाहिए? तो फॉर एग्जांपल दिया है, इसे तो कोई लॉ में नहीं है. व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिटेन्ड or when dismissal is set aside even though no separate order is required for it to take effect. तो इस केस में क्या है कि suppose when an employee is retained or when dismissal is set aside
इवन द नो सेपरेट ऑर्डर डिटेन हुआ है मीन्स ऑटोमेटिकली डिटेन्ड फॉर मोर देन 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा। और डिसमिसल सेट असाइड हो गया, जिस डेट में डिसमिसल ऑर्डर मिला था वहां से ऑटोमेटिकली सस्पेंशन कंटिन्यू होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। क्या उसके लिए कोई फॉर्मल लेटर देना चाहिए? तो उस केस में आप देख लीजिए, तो यहां पर भी फॉर्मल ऑर्डर जो है डिजायरेबल है, लॉ तो नहीं बोल रहा है ऑटोमेटिक सस्पेंशन केस में, मगर एक डिजायरेबल है कि रिटन ऑर्डर मिलना चाहिए। लॉ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सपोज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होगा, डीम्ड सस्पेंशन वही है कि डिसमिसल सेट असाइड हो गया और फर्दर इंक्वायरी दे दिया गया। उस केस में जिस डेट में डिसमिसल ऑर्डर मिला था वहां से ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो उस केस में लॉ तो नहीं बोल रहा है, मगर एक रिटन ऑर्डर डिजायरेबल होना चाहिए, क्योंकि रिटन ऑर्डर होने से क्या है, एक क्लियर रिकॉर्ड होगा, कंफ्यूजन भी अवॉइड होगा, और एक स्टेटस एंड एंश्योर्स दैट द स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। चाहे डीम्ड सस्पेंशन हो मगर एक फॉर्मल ऑर्डर इशू होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्लियर रिकॉर्ड्स चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर रिकॉर्ड्स चाहिए, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑर्डर में तो क्लियरली मेंशन है क्यों डीम्ड सस्पेंशन हुआ, क्यों कंटिन्यूड सस्पेंशन हुआ, और स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय को भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। तो इसीलिए एक फॉर्मल ऑर्डर जो डिजायरेबल है, लॉ नहीं बोल रहा है मगर एक डिजायरेबल है। ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब सस्पेंशन इफेक्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इज मेड और लेटर, नॉट फ्रॉम एन ईयरलियर। रेट्रोस्पेक्टिव आप याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है, बैकडेट से सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट नहीं होगा। जिस डेट में सस्पेंशन ऑर्डर इशू हुआ और सब्सिक्वेंटली बाद में, कभी भी बैकडेट से रेट्रोस्पेक्टिव सस्पेंशन इफेक्ट नहीं होगा, ये बोल रहा है। नॉर्मली सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज मेड, जिस डेट में ऑर्डर इशू हुआ कि उसके बाद में ओके सस्पेंशन इफेक्ट होगा। कभी भी बैकडेट से सस्पेंशन को इफेक्ट नहीं किया जाएगा। तो भाई रेट्रोस्पेक्टिव सस्पेंशन मींस बैकडेटेड सस्पेंशन इज नॉट वैलिड और प्रॉपर। कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव और बैकडेटेड सस्पेंशन वो मीनिंगलेस है, वो वैलिड नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, द ऑर्डर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हेन द सस्पेंशन स्टार्ट्स। जब ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया गया, सस्पेंशन ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया गया गवर्नमेंट सर्वेंट को, तब सस्पेंशन इफेक्टिव हो गया। ओके, वंस इशूड एंड कम्युनिकेटेड, ये देखिए सस्पेंशन ऑर्डर इशू हुआ और कम्युनिकेट कर दिया गया ओके कंसर्न एम्प्लॉय को, द सस्पेंशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम दैट डेट। जिस डेट में ऑर्डर इशू हुआ और कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया गया, उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्टिव हो गया। तो ये बैकडेटेड ऑर्डर, रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर इज मीनिंगलेस। तो कोई भी बैकडेट ऑर्डर, ठीक है, और कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर जो है वो मीनिंगलेस है, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए जिस डेट में ऑर्डर इश्यू होगा, ओके, ऑन व्हिच डेट द ऑर्डर इज मेड और लेटर उसके बाद में, ठीक है, तो वो प्रॉपर है। कोई भी बैकडेट, और बैकडेट को हम वही बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव डेट, उसी से सस्पेंशन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर जब ऑर्डर इश्यू हुआ और कंसर्न एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया गया, उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्टिव हो जाएगा। ऑर्डर इश्यू होगा और कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन में देता हूं कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस द सस्पेंशन ऑर्डर इज इशूड एंड सेंट, और सस्पेंशन ऑर्डर इशू हुआ और भेज दिया गया एंड सेंट आउट टू कंसर्न एम्प्लॉय, तब मान लिया जाएगा कि कंसर्न एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर दिया गया और उसी जिस डेट में एक्चुअली ऑर्डर इशू हुआ और उसको सेंड कर दिया गया, उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्टिव होगा। वंस द सस्पेंशन ऑर्डर इज इशूड एंड सेंट, इट इज कंसिडर्ड कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। फर्स्ट कम्युनिकेशन को समझिए। ओके, कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय मींस क्या है, जब ऑर्डर इशू होगा और उसको भेज दिया जाएगा। However, if the employee has already completed duty for that day, सपोज आज डेट में पूरा आप ड्यूटी कंप्लीट कर चुके हो, तो आज से सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आज पूरा डेट आप काम कर चुके हो आज का डेट में, तो सब्सिक्वेंट डे से सस्पेंशन इफेक्ट होगा। However, if the employee has already completed duty for that day, suspension will take effect from the next day। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द एम्प्लॉय इज पोस्टेड एल्सवेयर, सपोज आप इफ द एम्प्लॉय
has gone on tour, कि suppose has gone related to the training, कि holding charges of stores or cash. तो इस केस में authority should decide a suitable effective date considering the circumstances. अभी क्या है, सपोज एम्प्लॉई हैज गॉन ऑन टूर, कि एम्प्लॉई हैज गॉन ऑन ट्रेनिंग, कि उसके पास कुछ स्टोर्स का कि कैश का चार्ज है, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक सुइटेबल इफेक्टिव डेट को डिसाइड करेगा, ओके, जो सस्पेंशन को इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तो एम्प्लॉय नहीं है, अभी टूर में है कि ट्रेनिंग में है, कि उसके पास कुछ स्टोर्स और कैश चार्ज है, तो उस केस में क्या करेगा ना, अथॉरिटी सुइटेबल इफेक्टिव टाइम को डिसाइड करेगा, ओके, सर्कुमस्टांसेस को देखकर वो डिसाइड करेगा किस डेट में सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू होगा और कम्युनिकेट किया जाएगा कंसर्न एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देख लिए, when suspension happens automatically, deemed suspension can automatically take effect in certain cases when the employee is retained in custody. ये तो बहुत मैं बोल चुका हूं, when the employee is retained in custody for more than 48 hours, तो सस्पेंशन इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। बहुत बार क्वेश्चन आया है, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिटेन कर दिया गया क्रिमिनल चार्जेस में, कि कोई भी एल्सवेयर चार्ज है, सपोज कस्टडी में डिटेन हो गया फॉर मोर देन 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, मगर ये जो 48 आवर्स को काउंट करेंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। when the employee is convicted, found guilty by court, अभी कन्विक्टेड हुआ एंड गिवन इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 48 आवर्स, तो सस्पेंशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्टेड हुआ फिर इम्प्रिजनमेंट हुआ, तो उस केस में जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, मगर यहां पर जो 48 आवर्स हम काउंट करेंगे वो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और व्हेन ए पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट इज लेटर सेट असाइड बाय अपील और कोर्ट, यदि उसको हटा दिया जाता है और फ्रेश फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है, तो इस केस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन कहां से इफेक्टिव होगा ना, जिस डेट में कंसर्न एम्प्लॉय को ओरिजिनल ऑर्डर मिला था, डिसमिसल की रिमूवल का क्या कंपल्सरी रिटायरमेंट का जो ऑर्डर मिला था, वहां से फिर सस्पेंशन इफेक्टिव होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो ये सब कुछ कॉमन चीज है जो सस्पेंशन का इफेक्ट होता है, इसके ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, if a government servant is already on leave or absent without permission and not doing any official duty, 3 ऑप्शंस दिया है, एक है ऑलरेडी ऑन लीव, और एक है absent विदाउट परमिशन, absent है विदाउट परमिशन, और एक है वो ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, द सस्पेंशन ऑर्डर फर्स्ट लीव केस में ऑलरेडी ऑन लीव, जब वो लीव से रिटर्न आ जाएगा तब उसका सस्पेंशन इफेक्ट होगा, तब उसको सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू होगा और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा जब लीव से रिटर्न आ जाएगा। जब वो लीव में है तब तक वो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू नहीं होगा कि उसको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। ये देखिए, द सस्पेंशन ऑर्डर शुड नॉर्मली कम इनटू इफेक्ट ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन द एम्प्लॉय रिटर्न्स फ्रॉम लीव और वांट्स टू रिज्यूम ड्यूटी। जिस डेट में वो आकर ज्वाइन किया, उसका लीव खत्म हो गया, जब लीव खत्म होने के बाद जिस डेट में वो आकर ज्वाइन किया और उसका ड्यूटी रिज्यूम किया, ओके, उसी डेट में सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू होगा और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अच्छा, एब्सेंट, व्हेन द एम्प्लॉय इज स्टिल एब्सेंट, ओके, विदाउट परमिशन, तो उस केस में क्या होगा ना, द पर्सन बिकम्स ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड टू सब्सिस्टेंस अलाउंस, ओके। सब्सिस्टेंस अलाउंस में बोला था, सब्सिस्टेंस 50%, सब्सिस्टेंस अलाउंस में कितना मिलता है, 50% होता है आपका जो बेसिक पे है 50%, और उसी के ऊपर डीए। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सब्सिस्टेंस अलाउंस है, कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो मिलेगा आपका जो बेसिक पे है उसका 50% मिलेगा, उसी के ऊपर डीए मिलेगा, ओके, डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो यहां पर क्या है, यदि एम्प्लॉय एब्सेंट है विदाउट परमिशन, तो उस केस में उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंशन माना जाएगा और सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा फॉर दैट नॉन ड्यूटी पीरियड, ठीक है। और एक है नॉट डूइंग एनी ऑफिशियल ड्यूटी, आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ऑफिस आकर आप डेजर्शन ऑफ ड्यूटी, आप कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी आप नहीं कर रहे हो, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज द पावर टू डिसाइड बेस्ड ऑन द circumstances of each case into consideration and may direct that the order of suspension will take effect from the date of its communication to the government servant। तो ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कभी लीव में, तो आप लीव में हो, जब आप लीव से रिटर्न आकर ड्यूटी रिज्यूम करोगे उसी डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा। और एक एब्सेंट है वो विदाउट परमिशन, तो वो जो नॉन ड्यूटी पीरियड है वहां पर ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंशन माना जाएगा और सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा नॉन ड्यूटी पीरियड में। और एक है आप एनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखा कि आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंड किया जाएगा और आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस पे किया जाएगा। तो ये सब सर्कमस्टेंस को देखकर एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चंस चलेंगे, 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आजकल पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, मगर उसके पहले फिर मैं बोल रहा हूं कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट स्टेटमेंट्स हम डिटेक्ट करेंगे, मैं अंडरलाइन कर दिया। 3 स्टेटमेंट्स है, सस्पेंशन में बी ऑर्डर्ड टू प्रिवेंट इंटरफियरेंस इन एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, ये करेक्ट है। इसीलिए सस्पेंशन कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको ऑफिशियल कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी असाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको प्रिवेंट किया जाता है कि कोई भी जो इंक्वायरी चलेगा उसमें वो इंटरफियरेंस नहीं डालेगा, कि कोई भी वो इंक्वायरी में इंटरवेन नहीं करेगा, कि विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कि कोई एविडेंस को टैंपर नहीं करेगा। ये सेंटेंस करेक्ट है। सस्पेंशन कैन बी इम्पोज्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। सस्पेंशन शुड नेवर बी यूज्ड इवन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज एट स्टेक, ये गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट है मींस कोई सीरियस नेग्लिजेंस है, कोई कंसर्न एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन सीरियस नेग्लिजेंस, then public interest is attached, then automatically immediately competent authority उसको सस्पेंड कर देगा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है, तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आप डिटेक्ट करेंगे। ये प्राइमा फासी केस एस्टैब्लिश्ड इन ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैन जस्टिफाई सस्पेंशन, करेक्ट है। यदि प्राइमा फासी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ एविडेंस मिलता है उस बेस में कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन में बी नेसेसरी इन केसेस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिच्यूड और करप्शन, ये भी करेक्ट है। जब कोई मोरल टर्पिच्यूड और करप्शन का चार्ज लगेगा तो ऑटोमेटिकली कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इन केसेस ऑफ सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये गलत है, क्योंकि सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी केस में भी सस्पेंशन ऑटोमेटिकली इट मींस द कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो यहां पर दिया है कि सस्पेंशन कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इन केसेस ऑफ सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलिक्शन, ये तो गलत है। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। अगेन सॉरी, यहां पर पूछा है इनकरेक्ट, पूछा है इनकरेक्ट मींस ओनली 3, यहां पर आप देख लीजिए ये 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, तो ओनली 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन यहां पर हम करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। अच्छा देखेंगे स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। सस्पेंशन शुड बी ऑर्डर्ड ओनली आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स, करेक्ट है। सस्पेंशन कैन हार्म द ऑफिसर्स रेपुटेशन इवन इफ लेटर फाउंड इनोसेंट, करेक्ट है, क्योंकि वंस कोई कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है, उसका जो इमेज वो तारनिश हो जाता है, चाहे वो ऑफिस में और सोसाइटी में, करेक्ट है। सस्पेंशन मस्ट बी यूज्ड, सपोज बाद में सपोज उसके ऊपर जो चार्ज लगा था वो फॉल्स है, उस वो चार्जेस से वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है, एक्सोनरेटेड हो जाता है, मगर फिर भी एक बार सस्पेंशन हुआ मींस उसका रेपुटेशन खराब होगा। सस्पेंशन थर्ड स्टेटमेंट देखिए, सस्पेंशन मस्ट बी यूज्ड मैकेनिकली व्हेनेवर एन एलिगेशन इज रिसीव्ड, मैकेनिकली ऑटोमेटिकली, नो ऐसा नहीं, प्रॉपर एग्जामाइन होगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो प्राइमा फेसी एविडेंस को बिलीव करता है तब जाकर सस्पेंशन दिया जाता है। तो ऑल रिलेवेंट फैक्टर्स को लेने के बाद एक्चुअली कंसर्न एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करता है, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये गलत है थर्ड स्टेटमेंट। तो करेक्ट पूछा है मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। ठीक है, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिटेन कर दिया गया कस्टडी में और वो 48 आवर्स क्रॉस हो गया तो उस केस में ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। करेक्ट है। द सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एंड्स वंस द एम्प्लॉय इज रिलीज्ड ऑन बेल। नहीं है। सपोज वो क्या है, यहां पर बोल रहा है कि जैसे कस्टडी में डिटेन हुआ और मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डीम्ड सस्पेंशन हो गया, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। उसके बाद वो बेल में आ गया, क्या बेल में आने के बाद उसका जो ऑटोमेटिक सस्पेंशन वो खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आफ्टर दैट एक्चुअली द डीम्ड सस्पेंशन विल कंटिन्यू अंटिल मॉडिफाइज और रिवोक बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक उसको मॉडिफाई ना किया जाए, कि उसको रिवोक ना किया जाए, तब तक वो डीम्ड सस्पेंशन कंटिन्यू होता रहेगा। द 48 आवर्स आर काउंटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कन्विक्शन दिया है। नो, ये गलत है। जो 48 आवर्स, क्योंकि कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट होता है, तो ये जो 48 आवर्स हम काउंट करेंगे वो फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट, नॉट फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कन्विक्शन। क्लियर? तो एक्चुअली जो सस्पेंशन इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, मगर जो 48 आवर्स जो बोलते हैं कि सपोज कन्विक्टेड एंड इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, तो 48 आवर्स से ज्यादा होना चाहिए इंप्रिजनमेंट, तो वहां पर और वहां पर क्या होगा, जो 48 आवर्स हम काउंट करेंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट। और चाहे वो जो इंप्रिजनमेंट चाहे सपोज रेगुलर है कि इंटरमिटेंट, कभी गया फिर बाहर आ गया, फिर गया बाहर आ गया, यदि मिलाकर वो 48 आवर्स टुगेदर वो 48 आवर्स हो जाता, क्रॉस कर जाता है, तब वो भी काउंट होगा और ऑटोमेटिक सस्पेंशन होगा। तो ये मान लीजिए ओनली कंटिन्यू सस्पेंशन, कभी वो जेल में है और बाहर आ गया, फिर जेल में है फिर बाहर आ गया, पूरा टोटल आवर जो इंप्रिजनमेंट है, हम जब 48 आवर्स क्रॉस होगा ऑटोमेटिक वो सस्पेंशन माना जाएगा, मगर 48 आवर्स हम काउंट करेंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो यहां पर इनकरेक्ट 2 और 3, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो आप थॉरोली ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से एग्जामाइन कीजिए, तब बहुत इजी है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑलरेडी सस्पेंडेड and a new disciplinary case or proceeding starts, the authority may order that the suspension will continue। करेक्ट है। चाहे मोर देन वन केस में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, मोर देन वन केस, सस्पेंशन कंटिन्यू होगा जब तक जो भी पेंडिंग केसेस है, जब तक वो सभी टर्मिनेट ना हो जाए, जब तक वो फाइनल ना हो जाए, तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। The continuation of suspension must be authorized through a written order by the competent authority। written order तो देना है, continuation of suspension definitely formal order दिया जाएगा, written order दिया जाएगा। The continuation of suspension ends automatically once the first case is disposed of even if other cases are pending। ये गलत है। मोर देन वन केसेस चल रहा है, मोर देन वन केस के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां पर एक फॉर्मल ऑर्डर इश्यू करेगा कि सस्पेंशन कंटिन्यू होगा until all the disciplinary proceedings, okay, until the close of all disciplinary proceedings, until the termination of all disciplinary proceedings। जब तक जो भी मोर देन वन केसेस के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, जब तक सभी क्लोज ना हो जाए, तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि फास्ट केस डिस्पोज हो गया, अदर केसेस पेंडिंग है, तो इट मींस आपका सस्पेंशन एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो यहां पर करेक्ट भी पूछा है 1 और 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे, गलत स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। when multiple disciplinary cases are pending, the suspension remains in force until all cases are finally decided or closed। करेक्ट है। The competent authority has no power to continue the suspension once a new case starts। ये तो गलत है, competent authority के पास पावर है, competent authority ही पावर है, has no power दिया है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। to continue suspension, तो competent authority more than one cases के ऊपर disciplinary proceeding चल रहा है,
तो वहां पर तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर्मल लेटर इशू करेगा कि जब तक सभी केसेस क्लोज ना हो जाए तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। द सस्पेंशन ऑटोमेटिकली सीजेस वंस वन ऑफ द केसेस इज ड्रॉप्ड इवन इफ अदर्स आर पेंडिंग। ये भी गलत है। जब सभी केसेस जो सभी पेंडिंग केसेस जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक सस्पेंशन कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं है कि एक केस ड्रॉप हो गया तो सस्पेंशन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, मींस 2 and 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, whether the following statements is or are correct, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। रिगार्डिंग फॉर्मल ऑर्डर एंड सुप्रीम कोर्ट व्यू, डीम्ड सस्पेंशन ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2 बट ए फॉर्मल ऑर्डर शुड स्टिल बी इशूड फॉर रिकॉर्ड एंड क्लैरिटी। ये करेक्ट है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट डीम्ड सस्पेंशन एंड्स ऑटोमेटिकली व्हेन द एम्प्लॉय इज रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ऐसा कुछ नहीं है। आप कस्टडी में थे, 48 आवर्स क्रॉस कर गया, ठीक है, उसके बाद डीम्ड ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो गया, उसके बाद आप बेल में आ जाइए, क्या आपका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा? डीम्ड सस्पेंशन खत्म नहीं होगा। ओके, until it is modified or revoked by the competent authority. Deemed suspension continues until it is modified or revoked by the competent authority. ये ठीक है। तो करेक्ट आपको देख लीजिए 1 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, whether the following statements is or are incorrect statement डिटेक्ट करेंगे। डिसमिसल रिमूवल इज डिक्लेयर्ड void by court, okay, and a further inquiry is ordered, suspension is deemed to continue from the original order, original date। ठीक है, कंटिन्यू फ्रॉम द ओरिजिनल डेट मींस जिस ओरिजिनल डेट से आपको डिसमिसल रिमूवल का ऑर्डर मिला था उसी डेट से फिर आपका माना जाएगा कि आप उसी डेट से आपका डीम्ड सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, इवन इफ द एम्प्लॉय वाज नॉट अंडर सस्पेंशन अर्लियर, पहले सस्पेंशन नहीं था और उसके बाद वो सस्पेंशन नहीं था मगर उसको जॉब से रिमूव कर दिया गया कि डिसमिस कर दिया गया, और यदि बाद में उसको चाहे अपेलेट अथॉरिटी है कि चाहे रिव्यू अथॉरिटी है कि चाहे कोर्ट है उसको सेट असाइड कर दिया और आपको फिर री इंस्टेट कर दिया गया, ठीक है, और उसमें फर्दर इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे दिया गया, तो वहां पर भी जिस ओरिजिनल डेट में आपको डिसमिसल रिमूवल का ऑर्डर मिला था वहां से आपका फिर अगेन डीम्ड सस्पेंशन इफेक्ट होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ओके, ये भी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सस्पेंशन ऑटोमेटिकली एंड्स व्हेन द कोर्ट सेट असाइड द पेनल्टी। ऐसा नहीं है, जब कोर्ट सेट असाइड कर देता है फर्दर इंक्वायरी के लिए आपके ऊपर जो पेनल्टी लगा था, मेजर पेनल्टी, डिसमिसल रिमूवल लाइक पेनल्टी लगा था, कोर्ट उसको सेट असाइड कर दिया, हटा दिया और फर्दर इंक्वायरी के लिए बोल दिया। वहां पे क्या होगा ना, जिस ओरिजिनल डेट में आपको डिसमिसल की रिमूवल ऑर्डर मिला था उसी से फिर आपका डीम्ड सस्पेंशन इफेक्ट होगा अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये नहीं कि कोर्ट आपका जो पेनल्टी को हटा दिया, फर्दर इंक्वायरी बोल दिया और वहां पर सस्पेंशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो इनकरेक्ट मीन्स ओनली 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, whether the following statements is or are correct statement डिटेक्ट करेंगे। रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन सस्पेंशन ऑर्डर, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड ओनली थ्रू ए रिटन ऑर्डर, करेक्ट है। ओरल डायरेक्शंस और टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस टू सस्पेंड हैव नो लीगल इफेक्ट, करेक्ट है। ए रिटन ऑर्डर इज ऑप्शनल इफ द सस्पेंशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है रिटन ऑर्डर। रिटन ऑर्डर ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो करेक्ट पूछा है फर्स्ट 2, 1 and 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। रिगार्डिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सस्पेंशन, ओनली एन ऑफिसर हु इज लीगली एम्पावर्ड कैन इश्यू ए वैलिड सस्पेंशन ऑर्डर। ठीक है, जिस ऑफिसर के पास एक्चुअली लीगल पावर है सस्पेंड करने के लिए वही सस्पेंशन ऑर्डर वैलिड होगा। इफ एन ऑफिसर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी इश्यूज द सस्पेंशन इट इज इनवैलिड, ये भी करेक्ट है। यदि अथॉरिटी के पास पावर नहीं है सस्पेंशन ऑर्डर इशू करने के लिए और वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर देता है तो उस केस में तो वो सस्पेंशन इनवैलिड होगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट वेरीफाई इट्स पावर एंड एंश्योर रीजंस फॉर सस्पेंशन एग्जिस्ट बिफोर इशूइंग द ऑर्डर। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन सी नॉन इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पर सभी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे रिगार्डिंग इलीगल सस्पेंशन। इफ द सस्पेंशन इज इशूड बाय एन इनकम्पिटेंट अथॉरिटी इट इज ट्रीटेड एज वॉइड। ठीक है, वो सस्पेंशन वैलिड नहीं होगा। इन सच केसेस द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू फुल पे एंड अलाउंसेस। हाँ जी, नेवर सस्पेंडेड, ये भी ठीक है। जो जिस पीरियड में सपोज इनकम्पिटेंट अथॉरिटी आपको सस्पेंड कर दिया और आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिला, तो उसी जो पीरियड यदि वो डिक्लेयर होता है कि वो वैलिड नहीं है, तो अब उस पीरियड में फिर आप एंटाइटल फुल पे एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा। लेटर रेटिफिकेशन बाय हायर अथॉरिटी ऑटोमेटिकली मेक्स द अर्लियर इलीगल सस्पेंशन वैलिड। ऐसा इलीगल सस्पेंशन कभी वैलिड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। डिजरेबिलिटी ऑफ ए फॉर्मल सस्पेंशन ऑर्डर, in some cases like detention or setting aside of dismissal, suspension happens automatically. Deemed suspension, ये correct है। Even though no separate order is legally needed for deemed suspension, issuing a written order is desirable for record purposes। देखिए, deemed suspension केस में ऐसा लॉ नहीं बोला है कि आपको एक ऑर्डर देना है, वो तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, मगर फिर भी एक डिजरेबल ये में एक रिटन ऑर्डर देना चाहिए। रिटन ऑर्डर देने से क्या है, एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ रह जाएगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकंड करेक्ट है। रिटन ऑर्डर इज इन सच केसेस इज कंपल्सरी अंडर लॉ। ऐसा कुछ नहीं है जो डीम्ड सस्पेंशन केस में, जैसे ऑटोमेटिक सस्पेंशन केस में कोई ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी है रिटन ऑर्डर, मगर एक डिजरेबल है क्योंकि एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ रहेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए एक डिजरेबल सिचुएशन में एक रिटन ऑर्डर देना चाहिए, मगर ऑटोमेटिकली सस्पेंशन केस में लॉ नहीं बोल रहा है कि एक आपको एक ऑर्डर इशू करो। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट 3 ओनली, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, whether the following statements is or are correct regarding effective date of suspension। suspension normally takes effect from the date the order is made or a later date। ठीक है, जिस डेट में सस्पेंशन ऑर्डर इशू होगा और बाद में सब्सिक्वेंटली। ठीक है, करेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव सस्पेंशन वैलिड नहीं है। बैकडेटेड सस्पेंशन इज वैलिड ओनली इफ इट जस्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट। नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव की बैकडेटेड सस्पेंशन जस्टिफाइड नहीं है, मीनिंगलेस है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, वो बोल रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव सस्पेंशन इज वैलिड ओनली इफ जस्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा कुछ नहीं है। The order of suspension must be communicated to the government servant for it to become effective। ठीक है, ऑर्डर इश्यू होगा और उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर जिस डेट में ऑर्डर इश्यू होगा कम्युनिकेट कर दिया गया, उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्ट हुआ। तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिल गया 1 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, whether the following statements is or are incorrect। स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। communication and timing of suspension, a suspension order is considered communicated once if it is issued and sent to the employee। भाई ये communication means क्या है, ऑर्डर जिस डेट में ऑर्डर इशू हुआ और उसको भेज दिया गया ओके कंसर्न एम्प्लॉय को, तो उसी डेट से सस्पेंशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, करेक्ट है। इफ द एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड ड्यूटी फॉर द डे, सपोज आज पूरा दिन काम कर चुका है, तो आज सस्पेंशन इफेक्ट नहीं होगा, सब्सिक्वेंट डे में कल से सस्पेंशन इफेक्ट होगा। तो इफ द एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड ड्यूटी फॉर द डे, सस्पेंशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, ये भी करेक्ट है। इफ द एम्प्लॉय इज ऑन टूर और पोस्टेड एल्सवेयर द अथॉरिटी में डिसाइड ए सुइटेबल इफेक्टिव डेट एंड टाइम, ये भी करेक्ट है। यदि एम्प्लॉय टूर में है कि ट्रेनिंग में है और उस केस में यदि अथॉरिटी डिसाइड करता है कि सस्पेंशन ऑर्डर इशू करेगा, तो एक सुइटेबल डेट में एक्चुअली वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू करेगा, जब वो रिटर्न आ जाएगा टूर से, जिस डेट में टूर से रिटर्न आकर वो ज्वाइन करेगा, कि उसके बाद में कि वो ट्रेनिंग जिस डेट में वो आकर ट्रेनिंग वो गया था और जिस डेट में आके वो ज्वाइन किया, ओके हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया, उसी डेट से सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट हो सकता है कि बाद में हो सकता है। ठीक है, वो सुइटेबल इफेक्टिव डेट एक्चुअली वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगा। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है मींस नॉन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सभी करेक्ट है।
इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे रिगार्डिंग डीम्ड सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन। When a government servant is retained in custody for more than 48 hours, suspension is effective from the date of detention. Correct है। When convicted and sentenced to imprisonment exceeding 48 hours, suspension starts from the date of conviction. ठीक है। When dismissal or removal or retirement is set aside on appeal or court order, suspension is effective from the date of suspension is effective from the date of reinstatement। ये गलत है। Suspension is effective from the date of original order of suspension। जो continued suspension, it is effective from the date of original order of dismissal। original order of dismissal, जिस डेट में आपको डिसमिसल की रिमूवल ऑर्डर मिला था उसी डेट से आपका सस्पेंशन, ऑटोमेटिक सस्पेंशन इफेक्ट होगा until फर्दर ऑर्डर्स। तो थर्ड वन गलत है। तो करेक्ट पूछा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो ये 15 क्वेश्चंस था। आजकल इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है और आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करना है। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप देख लीजिए। 10 क्वेश्चंस है। फॉर व्हाट डेट डज सस्पेंशन नॉर्मली टेक इफेक्ट, इसको आप लिख सकते हो। फ्रॉम व्हाट डेट डज सस्पेंशन नॉर्मली टेक इफेक्ट, व्हाई इज रेट्रोस्पेक्टिव सस्पेंशन कंसिडर्ड इनवैलिड, बैकडेटेड सस्पेंशन, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन एंड टाइमिंग ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर्स, ये सब इसमें डिस्कस कर चुका हूं। व्हाई इज इट डिजायरेबल टू इश्यू ए फॉर्मल सस्पेंशन ऑर्डर इवन इन केसेस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, ये देखिए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटरी प्रूव हो जाता है और जो भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्मल सस्पेंशन ऑर्डर इशू होना चाहिए, डिजायरेबल है, क्योंकि ऑटो डीम्ड सस्पेंशन केस में लॉ नहीं बोल रहा है कि आप फॉर्मल ऑर्डर इशू करो, मगर एक डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के लिए और टू प्रिवेंट कंफ्यूजन डेफिनेटली a desirable formal suspension order should be issued. Discuss the administrative advantages of issuing a written suspension, क्यों written suspension देना चाहिए। ओके इसके ऊपर आप कुछ एडवांटेजेस आप लिखिए। डिस्कस द लीगल इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर्स इशूड बाय एन इनकम्पिटेंट अथॉरिटी। आप जानते हो इनकम्पिटेंट अथॉरिटी यदि सस्पेंशन ऑर्डर इशू करता है तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। और इस केस में यदि कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है और सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है तो वो पीरियड में फिर उसको फुल सैलरी एंड एंटाइटलमेंट मिलेगा। Why must a suspension order always be in writing, इसको आप लिख सकते हो। How is the 48-hour period for deemed suspension calculated, 48-hour period कैसे कैलकुलेट होता है डीम्ड सस्पेंशन केस में। जैसे कन्विक्टेड हुआ, कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट हुआ, तो जो 48 आवर्स हम काउंट करेंगे फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इंप्रिजनमेंट, मगर सस्पेंशन इफेक्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। What happens when dismissal or removal is set aside by an appellate authority or court? यदि appellate authority court जो मेजर पेनल्टी लाइक डिसमिसल रिमूवल ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है और फर्दर इंक्वायरी के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, उस केस में जिस डेट में आपको डिसमिसल रिमूवल का ओरिजिनल ऑर्डर मिला था उसी डेट से आपका डीम्ड सस्पेंशन इफेक्ट होगा until further orders. Explain two circumstances in which suspension takes effect automatically. Automatically means a deemed suspension. Okay, we have two circumstances already. आप rules आप CCA rules 10 subsection 3 देख लीजिए क्लियरली। ऑटोमेटिकली सस्पेंशन ना डीम्ड 2 सबसेक्शन 2, ठीक है। ये तो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए रूल 10 सबसेक्शन 2। ओके, टू सर्कमस्टांसेस है, जैसे डिटेंड इन कस्टडी फॉर मोर देन 48 आवर्स और एक है कन्विक्शन एंड इंप्रिजनमेंट एक्सीड्स 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन माना जाएगा। तो ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। ओके, इफ यू लिसन द वीडियो प्रॉपरली इजीली यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड। सो माय फ्रेंड्स, आज इतना ही है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।